Hey guys, in this video we are going to talk about theoretical part of the first chapter, that is development in the business enrollment. This is especially important for you. Don't neglect theory, as I kept telling you. Reason, in every attempt you see at least 4 to 6 marks they are allocating only for the theoretical part. So today in this video we will be talking about that 4 to 6 marks. You can bag it by spending 10 to 15 minutes. So I request your maximum attention. So let's start. Quality cost. Cost of performing the activities to check the failure in the meeting of the quality specification. Just like this, you have produced a product. Now you are doing something in order to see whether you have produced a correct product or not. ओके दोबारा आपने आपको देख ले रहा क्या मैं करेक्ट रास्ते पे चल रहा हूं नहीं. ओके द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इजंट द प्राइस ऑफ क्रिएटिंग ए क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस. इट इज द कॉस्ट ऑफ नॉट क्रिएटिंग द क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस. See, just by incurring this quality cost, you are not increasing any value to it. Okay, just by performing certain activity, you are not increasing the value of this calculator. By performing this activity, you are seeing you are not producing a bad quality product. We'll see all those things now. Every time the work is redone, the cost of the quality increases. अगर कुछ गलती करा तो उसको दोबारा करना पड़ता ना, so your quality cost is increasing. The correction of a bank statement. You have a current account in the bank and bank has given a statement. Now they are correcting. अब बोले कि like हमारा statement में कुछ गलत है तो they are doing one more time. तो reworking बार बार करना, जो भी काम आप बार बार कर देना, your quality cost is increasing. Okay, so same thing. आप रेस्टोरेंट पे गए, something you ordered and he delivered a wrong product or maybe not bad quality product. So you are like, okay, I want a new product, new item. So he is getting one more time. So that is quality cost. And what is quality? It is a measure of goodness to understand how a product meets its specification. हम normally बोलते हैं ना, quality का मतलब मेरा थोड़ा expectation है. अगर if it meets my expectation, I'll say that is a good quality product. No, I'm using this pencil, so I have certain expectation. ऐसे ही चलेगा बोल के. If it is meeting my expectation, I'll say it's a good quality product. नहीं तो बकवास है. ISO डिफाइंस कुछ डेफिनेशन दे दिया, हम पढ़ने का जरूरत नहीं क्योंकि एग्जाम में वो आने वाला नहीं है. 9 डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी शायद ये आ सकता, शायद बहुत कम चांस है, फिर भी वो आ सकता. परफॉर्मेंस हमारा बुक में एक एग्जांपल दे दिया था. परफॉर्मेंस बोले तो लाइक इफ यूर वाचिंग ए टीवी, व्हाट यू विल सी, इट्स परफॉर्मेंस का मतलब ब्राइटनेस. यू विल सी द ब्राइटनेस, अरे कितना ब्राइट दिख रहा हो बोल के. एंड देन फीचर्स, क्या रिमोट दे दिया, क्या वाईफाई दे दिया, वैसे चीज. कन्फॉर्मेंस, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, उसका कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड रहता है ना, एलईडी एलसीडी ऐसा बोल के, यू विल सी दैट. रिलायबिलिटी बोले तो कितने साल चल सकता. ड्यूरेबिलिटी, यूजफुल लाइफ. एंड सर्विस, अगर कुछ खराब है तो सर्विस सेंटर है ही नहीं, अगर है तो किधर है, हाउ मच दे आर चार्जिंग, ऐसी चीज़ों को देखते. रिस्पॉन्स, जब करते समय क्या क्या रिस्पॉन्स आया था. एस्थेटिक्स, उसका एक्सटर्नल फिनिश, इसको देखो कैसे एक्सटर्नल फिनिश दे दिया. दोज थिंग्स विल सी. मोबाइल का भी देखो, लाइक इफ द बिल्ड क्वालिटी इज गुड, यू फील लाइक परचेसिंग इट. एंड रेपुटेशन, उसका ब्रांड वैल्यू. ओके, सो ऐसे चीज़ों में ऐसा चीज़ विल कम अंडर डायमेंशंस ऑफ द क्वालिटी. फॉर एलॉबरेटेड एक्सप्लेनेशन आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो. If you would like to have an elaborated explanation, just watch that. Otherwise, this is enough for the examination point of view. Now, this copy, I want you to take a snapshot in your mobile or wherever you're watching, because exam जाने से पहले, like 15 मिनट आधा घंटा पहले ऐसे चीज़ों को देखो, क्योंकि हर एक अटेम्प्ट में ऐसे क्वेश्चन तो ज़रूर आ रहा. आई एम रिपीटिंग, ये तो एक बार आप नोट्स में लिख लो, नहीं तो टेक ए स्नैपशॉट, जाते जाते समय ये पढ़ने का ज़रूरत है. देखो, प्रिवेंटिव कॉस्ट, अप्रेजल, इंटरनल फेल्योर, एक्सटर्नल फेल्योर. बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा. लास्ट अटेम्प्ट में भी शायद 8 नंबर के लिए पूछा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 8 नंबर नहीं तो 6 नंबर के लिए. प्रिवेंटिव कॉस्ट क्या है, अप्रेजल क्या है, इंटरनल फेल्योर क्या है, एक्सटर्नल फेल्योर क्या है. दे विल बी गिविंग अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, समथिंग लाइक 10-12. नाउ यू हैव टू सेग्रीगेट, इज इट इंटरनल फेल्योर, एक्सटर्नल फेल्योर, नहीं तो अप्रेजल, ऐसे चीज आपको करना पड़ता. ओके, सो दिस 4 थिंग्स आर देयर. आई वांट यू टू टेक अ स्नैपशॉट एंड रीड इट बिफोर द एग्जामिनेशन, बट आई विल एक्सप्लेन इट नाउ. प्रिवेंटिव कॉस्ट देखने से पहले, प्रिवेंटिव कॉस्ट का मतलब यू आर इंकरिंग ए कॉस्ट टू प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग. अगर वो नहीं करे तो शायद आपका गलती प्रोडक्ट हो सकता. फॉर दैट दिस इज अ प्रिवेंटिव कॉस्ट. That is the explanation that I should give. But if I have to think like a student, I'll say
जो भी आपको क्वालिटी दिख रहा है ना, क्वालिटी इंजीनियरिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग, क्वालिटी ऑडिट, क्वालिटी सर्कल्स, क्वालिटी एस्टैब्लिश क्वालिटी सर्कल्स, जब भी आपको क्वालिटी का नाम आ रहा ना, सो यू से दैट इज अ प्रिवेंटिव कॉस्ट. ओके, एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है. आई टोल्ड यू दिस इज जस्ट एन एग्जामिनेशन कैप्सूल है. एंड अप्रेजल, अप्रेजल का मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, नाउ व्हाट आर यू सी, ये दीज आर ऑल थिंग्स दैट विल सी बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शन. वो प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले यूल सी नो क्वालिटी इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग आपका अच्छा ही नहीं है. क्वालिटी ट्रेनिंग, जो काम कर रहे हैं वो लोग क्वालिटी से उसका दिमाग अच्छा चल रहा नहीं चल रहा. और क्वालिटी ऑडिट्स, तो ऐसे चीज़ों यूल सी बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शन. अभी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, ऑल दो थिंग्स विल कम अंडर द अप्रेजल. देखो, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन चलते समय आप जाकर कुछ देख रहा. प्रोडक्शन एक्सेप्टेंस, सॉरी प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, इसका मतलब फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस द प्रोडक्ट इज मूविंग. तो while it is been received by the other process, they are checking, okay, इसको accept करना नहीं करना, अगर correct नहीं है तो I'll be sending it out. Okay, are you understanding? This is product acceptance. Packing inspection, और packing होने के बाद में we are seeing, okay, packing अच्छे है नहीं की, okay, and field testing, continuous supplier verification. अभी you are checking your supplier, the one who is supplying you the raw material, क्या वो correct quality का दे रहा नहीं दे रहा, quality correct quantity को दे रहा नहीं दे रहा. okay, and production inspection, material inspection. see, ऐसे चीज़ को रट्टा पाने का जरूरत नहीं. वो ना बोलते मार सकते क्योंकि 5 नंबर मिलता, बट एग्जाम में कैसे लिखना, वट एवर यूर इंकरिंग वाइल द प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन. देखो, मटेरियल इंस्पेक्शन, मटेरियल जाते समय आपको देख रहा. प्रोडक्शन इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन प्रोड्यूस होते समय आप देख रहे. फील्ड टेस्टिंग से ऐसे चीज, प्रोडक्ट पैकेजिंग इंस्पेक्शन, समझ में आ रहा. यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स वाइल समथिंग इज हैपनिंग. ये क्वालिटी का क्या है, यू आर इंकरिंग दिस थिंग्स बिफोर समथिंग इज हैपनिंग. नाउ यू फाउंड आउट दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, you produced a bad quality product, गलती से हो गया. if you find it on your own, that is internal failure. if somebody tells you that it is a bad product, that is an external failure. समझ में आ रहा. एक कैलकुलेटर को लेंगे एग्जाम्पल, गलती से बैड प्रोडक्ट आ गया, लेकिन इंटरनल डिपार्टमेंट ओनली दे आर फाइंडिंग इट, और देयर से कुछ गलती है. अगर गलती है एंड यू ओनली फाउंड इट आउट, यू कैन से इंटरनल फेल्यूर. यू डिडंट फाइंड इट आउट, बेच दिया, somebody will come is coming and telling you that this is a bad quality product, तो एक्सटर्नल फेल्यूर. कैसे कैसे चीज आ सकता है. देखो, स्क्रैप, गलती प्रोडक्ट हो गया ना, उसको फेंक दो, स्क्रैप. रीवर्क, अगर थोड़ा खराब है तो दोबारा भी कर सकते हैं ना, तो रीवर्क. री इंस्पेक्शन, जो अभी तक यहाँ पर इंस्पेक्शन आया था ना, आई चेंज द कलर, यहाँ पर इंस्पेक्शन आया था ना, इसको दोबारा देखो, वो री इंस्पेक्शन कैटेगरी में आ रहा. समझ में आ रहा, जो चीज उससे पहले था वही कंटिन्यू हो रहा. देन रीटेस्टिंग, यहाँ पर टेस्टिंग था ना, यो टेस्टिंग, टेस्टिंग को दोबारा देखो, रीटेस्टिंग. एंड रिपेयर, अभी तो आया था रिपेयर बोल के, कुछ रिपेयर करो. रिपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट का मतलब इस देयर इज अ बैड क्वालिटी प्रोडक्ट. उसका वजह क्या हो सकता, मे बी द machinery that is producing this product is got damaged, तो उसको रिपेयर करो. वो भी वो इंटरनल फेल्यूर है ना. इट्स नॉट दैट somebody is coming and telling you that this is a failure. आप खुद ही जान रहे हैं कि there is something problem in you with your manufacturing equipment. I hope I am clear here. अगर आप if you find it on your own, that is internal failure, and if you come to know about that by somebody else, that is external failure. देखो, revenue loss, revenue loss का मतलब you produced a bad quality product, और बाहर चला गया, somebody is telling you that the product is not nice, तो रेवेन्यू लॉस, क्योंकि हमारा रेपुटेशन भी कम हो जाता है ना. वारंटीज, वारंटीज का मतलब while selling only you told that अगर कुछ 1 year में कुछ खराब हुए तो I'll be doing it बोल के. now is coming and telling that okay you said there is a warranty rate, मेरा स्क्रीन चला गया, उसको रिप्लेस करो. ओके, सो वारंटी में आ जाता. एंड डिस्काउंट ड्यू टू डिफेक्ट्स, अगर कुछ डिफेक्ट है तो नोबडी विल बी रेडी टू पे 100% ऑफ इट्स प्राइस, यू हैव टू रिड्यूस योर सेलिंग प्राइस, सो दैट इज डिस्काउंट ड्यू टू डिफेक्ट्स. प्रोडक्ट लाइबिलिटी, प्रोडक्ट लाइबिलिटी बोला तो समथिंग लाइक दिस, यू सोल्ड वन रेफ्रिजरेटर, उसका घर जाने के बाद में वो इट जस्ट ब्लास्टेड, तो आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कोर्ट को जाते हैं ना, तो आपको कुछ लाइबिलिटी पे करना पड़ रहा. दैट इज ऑल्सो एक्सटर्नल, क्योंकि वो एक्सटर्नल पार्टी से आ रहा. एंड वारंटीज, अभी तो आया था फिर से आया वही. आर यू अंडरस्टैंडिंग. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई विल से टेक ए स्नैपशॉट, रीड इट 10 times एंड रीड इट वंस एटलीस्ट गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल. एंड 4 P's ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट, आपका क्वालिटी बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं. पीपल, जो लोगों का काम कर रहे हैं ना, थोड़ा इंथुजियास्टिक रहना. बोरिंग क्या होता है भाई, वो नहीं दो, not like that, not such kind of people. enthusiasm, थोड़ा enthusiasm रहना चाहिए. process, process का मतलब
अगर कुछ प्रॉब्लम है तो देयर शुड बी ए करेक्ट मैकेनिज्म, वो किसको बताना एंड व्हाट ही शुड डू एंड ऑल शुड बी इनवाइटेड बिफोर टेकिंग एन एक्शन. तो ऐसे एक प्रोसेस जैसे चलना. इट्स नॉट लाइक गलती हो गया तो तेरा गलती है. इट शुड नॉट बी लाइक जंपिंग इनटू द कंक्लूजन. एक प्रोसेस का हिसाब से चलना पड़ता. प्रॉब्लम्स, जो भी आपका प्रॉब्लम है थोड़ा छोटा छोटा करके ना सोचो क्या प्रॉब्लम हो रहा बोल के. बड़ा प्रॉब्लम को बड़ा है जैसा मत सोचो. एंड प्रिपरेशन का मतलब आप जो भी सोचते हैं ना एक बेसिस पे सोचना. लाइक यू नीड टू हैव द स्टैटिस्टिकल डेटा एंड ऑल दोस थिंग्स. ओके, एनीवे दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, सो आई वुड से लीव इट. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आपको 6 C's रहने वाले हैं. कमिटमेंट फ्रॉम एम्प्लॉइज अच्छा कमिटेड रहना चाहिए. क्वालिटी इंप्रूवमेंट कल्चर, जो भी आप कर देना वो कल्चर के हिसाब से रहना चाहिए. बोले तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में हमारा कल्चर ही चाहिए. लाइक वट एवर वी डू वी ट्राई टू डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे. कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस. ओके, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट बोले तो आज जैसा भी है कल थोड़ा बेटर ना, उसके बाद में और थोड़ा बेटर और बेटर और बेटर. बोले तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का रहना चाहिए. एक बार क्वालिटी इंप्रूवमेंट आ गया तो मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ, तो दैट वोंट happen. Just like our CA profession, once you are into CA practice, you need to study every time. Just because you clear the examination doesn't mean that you are on top. कोऑपरेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए. फोकस ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है कस्टमर का हिसाब से सोचो, नॉट फ्रॉम योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. इफेक्टिव कंट्रोल शेल बी लेड डाउन. ओके, सो ऐसे चीज़ों एग्जाम में आने का चांसेस बहुत कम है. एंड दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. एंड टारगेट कॉस्टिंग का मतलब वी हैव प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑल्सो. नॉर्मली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विल बी आस्क्ड, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई डू एज क्विक एज आई कैन. प्रॉपर प्लानिंग वेल अहेड ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन करने से पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा. व्हाट इज दिस टारगेट कॉस्टिंग मतलब नॉर्मली व्हाट विल हैपन, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड पूरा मिला के यू विल हैव सम कॉस्ट एंड यू विल हैव सम प्रॉफिट एंड यू विल बी सेलिंग इट. ओके, बट मार्जिनल कॉस्ट में करते ना सब मटेरियल, लेबर, एक्सपेंडिचर, उसके बाद में ओवरहेड एंड प्लस कुछ ऐड करो, कुछ प्रॉफिट ऐड करो एंड यू विल बी गेटिंग द सेलिंग प्राइस. ऐसे करते ना. बट व्हाट इज सेइंग इज selling price you cannot determine, because if the competition is too huge in the market, you cannot say I'll sell it at this price only. Okay, if you are only the player in the market or if you have the monopoly situation, you can say I'll sell it at this price only. अगर आप लेना है तो ले, नहीं तो नहीं. You cannot say that every time. When the competition is too huge, सेलिंग प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट इटसेल्फ. तो आपके पीछे जाना पड़ता. अगर मेरे को इतना सेलिंग प्राइस रहना बोले तो हाउ मच शुड बी माय प्रॉफिट. अगर मेरे को इतना प्रॉफिट रहना बोले तो हाउ मच शुड बी माय कॉस्ट. सो टारगेट कॉस्ट. सो यू आर हैविंग ए टारगेट. अरे मेरा सी नैनो का एग्जांपल ले, while announcing itself he said that the car would be of 1 lakh rupees. So now the department, like manufacturing department or the engineering department, they have to think what all we can do to get it into 1 lakh rupees. 1 lakh में हमारा तो प्रॉफिट मिनिमम 5,000 तो रहना चाहिए. तो मेरा कॉस्ट शुड बी 95,000 में फिट कैसे होना. ओके, दैट इज लाइक टारगेट कॉस्टिंग. enhances employee awareness of the awareness and empowerment. Why, how it is enhancing the employee awareness? बिकॉज आपको मालूम है आप जितना सोचे तो उतना इंकर नहीं हो सकते. मटेरियल का मेरा टारगेट है कि 10 रुपीज़ में हो जाना, तो यू विल बी थिंकिंग अरे मेरा 10 रुपीज़ ही होना बोले तो हाउ मच शुड आई इंकर, हाउ केयरफुली आई शुड बी. ओके, फास्टर पार्टनरशिप विद द सप्लायर्स, ये तो चीज़ बहुत कम है, एक बार पढ़ लो. एंड केजन इज ऑल्सो लाइक थियरेटिकली पूछने का चांसेस बहुत कम है, बट वंस आई एक्सप्लेन. इट इज अ जापानीज टर्म फॉर ए नंबर ऑफ कॉस्ट रिडक्शन स्टेप्स दैट कैन बी यूज्ड सब्सिक्वेंट टू यू इशूइंग new product design to the factory floor. What we'll do is we'll apply all possible ways in order to reduce the cost. एक रुपए भी रहने दो, एक 1% भी रहने दो. It is a continuous improvement with the least possible increment. Okay. Some of the steps in the Kaizen costing methodology include the elimination of the waste in the production, assembly and distribution process, as well as the elimination of the work steps in any other these areas. Okay. बस पढ़ लो होता है. Though these points are also covered in the value engineering में सेम पॉइंट्स रहने वाला है. Engineering phase of the target costing, the initial value engineering may not cover all possible savings. Okay, value engineering में it's not covering all the points, but in the Kaizen they are covering all the points. The cost reduction resulting from the Kaizen costing are much smaller. देखो ये एग्जाम के लिए ये important है. As I told you, we are going with the examination thinking.
स्मॉल रहेगा आपका इंप्रूवमेंट, दोज अचीव्ड विद द वैल्यू इंजीनियरिंग बट आर स्टिल वर्थ इफेक्ट। ओके, वैल्यू इंजीनियरिंग में बड़े इंप्रूवमेंट आने वाले, केजन में स्मॉल इंप्रूवमेंट्स ओनली विल कम बट दैट इज वर्थ, यू कैन ट्राई इट। ओके, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या फेजेस रहता, विल हैव डेवलपमेंट फेज, यू हैव ए प्लानिंग दैट आई शुड मैन्युफैक्चर ए मोबाइल। ओके, सो दैट इज योर डेवलपमेंट फेज। पहले आप R&D करते, कौन सा टेक्नोलॉजी लाना, बल्कि इसको डिजाइन कैसे रहना चाहिए। ओके, ऑल बिल्ड क्वालिटी, साइज एंड ऑल दोस थिंग्स। इंट्रोडक्शन, जब आपका वो R&D हो गया ना, व्हाट यू विल थिंक, लोगों को बताना कि लाइक आई एम डूइंग दिस, तो वो प्रमोशनल फेज बन गया। ग्रोथ का मतलब नाउ यू स्टार्ट, नाउ पीपल केम टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट, नाउ यू हैव टू मैन्युफैक्चर इट, राइट। सो पहले मैन्युफैक्चर करो। ओके, it's not that customer will come to your home and buy it, you have to distribute it through various means, channels, and product support. Okay, once you sold the product to the customer, your job is not ending, वो फिर से आने वाले हैं, like this is not working, this is a defective product, मेरा स्क्रीन अच्छा नहीं है। Okay, so there is a customer support, and then डिक्लाइन और रिप्लेसमेंट। डिक्लाइन का मतलब आपका जितना होना था उतना हो गया, यू अर्न ए लॉट ऑफ मनी, नाउ द प्रोडक्ट इज डिक्लाइनिंग, वो टेक्नोलॉजी चला गया अभी। नाउ व्हाट यू डू, जो भी आप प्लांट परचेस कर रहा था उसको रीयूज करना बोले तो यू हैव टू थिंक वन मोर टाइम फॉर द न्यू प्रोडक्ट एंड यू हैव टू रीयूज द प्लांट, और उसको सेल कर दो, नहीं तो उसको स्क्रैप कर दो, नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा कर दो। ओके, सो दीज आर ऑल द 4 फेजेस। एग्जाम में ए पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आई वुड लाइक यू टू हैव ए स्नैपशॉट ऑफ दिस, तो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, आपके लिए 4 नंबर का भी आ सकता। ओके, ये थियरी भी जरूरत नहीं है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज। प्राइमरी एंड सपोर्ट में आपको क्या क्या आने वाले हैं, आई विल एक्सप्लेन वंस। प्राइमरी का मतलब वॉट एवर यू आर इंकरिंग फ्रॉम ब्रिंगिंग द रॉ मटेरियल and converting it into the end product is your primary, means without the primary activities you cannot get the product to the customer. Secondary बोलते what all the activities that are supporting the primary. okay, वो थियोरेटिकली समझ में नहीं आता, यहाँ पर देख लो आपको समझ में आता। प्राइमरी में मटेरियल हैंडलिंग एंड वेयरहाउसिंग, जब मटेरियल आ रहा सप्लायर से तो उसको अच्छा हैंडल करना, अच्छा वेयरहाउस करना, मतलब उसका अच्छा स्टोर भी करना, सो दैट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। ओके, उसका सपोर्ट क्या क्या हो सकता, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, उसको रॉ मटेरियल को परचेज करना सेकेंडरी, उसको अच्छा हैंडल करना, मेंटेन करना, वो प्राइमरी। ओके, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कोई कस्टमर आपके आके आपको बोल रहा है लाइक आई नीड 100 kgs ऑफ दिस मैच। ओके, वो ऑर्डर को आप प्रोसेस करना, क्या कौन से डेट तक देना, कैसे थ्रू व्हाट आई शुड गिव इट। ओके, ऑल दो थिंग्स विल थिंक दैट इज ऑर्डर प्रोसेस, ऑफ ऑर्डर को प्रोसेस कर रहे एंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे बोले तो लाइक थ्रू वैन और थ्रू DCM और वॉट आर द मीन्स दैट यू फील, यू विल बी ट्रांसफरिंग इट टू हिम। एंड इंस्टॉलेशन, रिपेयर्स एंड पार्ट रिप्लेसमेंट, if you are into the AC example, you have to install in his home. Okay, so now you are going and installing it, तो वो भी हमारा प्राइमरी हो जाता। ओके, एंड रिपेयर्स, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो रिपेयर्स करना, कुछ पार्ट खराब हुआ है तो उसको रिप्लेस भी करना। ओके, वी विल डू ऑल दो थिंग्स। लेबर और ह्यूमन रिसोर्सेज, उन लोगों का सिलेक्ट करना, प्लेसमेंट देना, प्रमोशन देना, वो पूरा सेकेंडरी में आ गया। समझ में आ रहा, एग्जाम में आपको ये पूरा दे देता, लाइक यू विल बी गिविंग ऑल द थिंग्स, नाउ यू हैव टू सेग्रीगेट, या प्राइमरी में सेकेंडरी बोल के आपको 4 नंबर मिलता है उधर। ट्रांसफरिंग इनपुट इनटू आउटपुट, देखो अभी तक आप रॉ मटेरियल परचेस करा था, अभी वो गोडाउन में पड़ा हुआ है, नाउ दैट रॉ मटेरियल यू आर कन्वर्टिंग इनटू आउटपुट, वो प्रोडक्शन चल रहा ना, दिस इज एक्चुअल प्रोडक्शन, हमारा कॉस्टिंग पूरा यहाँ पर ही ये प्रोडक्शन चल रहा ना, सो यू आर ट्रांसफरिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, तो वो भी आपके लिए प्राइमरी बन सकता। एंड देन कम्युनिकेशन, प्राइसिंग एंड चैनल मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन बोलते हैं लाइक हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग, लाइक नॉट दैट कम्युनिकेशन बट हाउ यू आर लेटिंग योर सेल्फ नो टू द पीपल। एंड प्राइसिंग, रेट कैसे फिक्स कर रहा। ओके, देयर हैज टू बी वेरियस बेसिस। एंड चैनल मैनेजमेंट, अगर डिस्ट्रीब्यूट करे तो आपको चैनल मैनेजमेंट बोल के भी रहता ना, लाइक डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है, डीलर्स कौन है, ओके, ऑल दोस थिंग्स, एजेंट्स कौन है। एंड देन ये पूरा मैनेज करने के लिए जनरल मैनेजमेंट, प्लानिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ये पूरा सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो हमका बहुत इंपॉर्टेंट है, मटेरियल लाना, उधर रख देना, उसको
कन्वर्ट करके आउटपुट में दे देना, यू आर गिविंग इट टू द एंड यूज़र, उसके पास जाके इंस्टॉलेशन करना एंड अगर कुछ प्रॉब्लम है तो रिपेयर करना, ऐसे चीज़ों में प्राइमरी है. what else is supporting this primary or secondary. 4 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. I request your maximum attention there. And then this theory of constraint, ये क्वेश्चन भी 2 अटेम्प्ट पहले भी आया था 4 नंबर के लिए, तो शायद अभी भी आ सकता. theory of constraint, throughput contribution, operating cost, इन्वेस्टमेंट. ओके, सो अगेन यू डोंट हैव टू मार्क अप दिस, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे देता वो. ही विल बी गिविंग फ्यू लिस्ट, एक चार भी नहीं 8-10 जैसा एक लिस्ट दे देता. नाउ यू हैव टू सेग्रीगेट कौन सा वो थ्रूपुट में जाने वाले, कौन सा वो ऑपरेटिंग में जाने वाले, कौन सा इन्वेस्टमेंट में जाने वाले. एवरीथिंग विल बी देयर इन द एग्जामिनेशन ओनली, जस्ट दैट यू हैव टू सेग्रीगेट. देखो कॉन्ट्रीब्यूशन कभी पढ़ा क्या, मार्जिनल कॉस्ट पूरा वही है ना, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. ओके, सो सेल्स भी आपको थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन में आने वाले हैं. एंड रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट वही है ना रॉ मटेरियल, तो हमारा वो दोनों आपके लिए थ्रूपुट में चले जाएगा. एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब वॉट एवर यू आर इंकरिंग टू ऑपरेट इट, बोलता वो पूरा करने के लिए अब क्या क्या इंकर हो रहा, रेंट एंड यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ऑल दोस थिंग्स, इंश्योरेंस, समथिंग लाइक दैट. एंड डेप्रिसिएशन ऑल्सो यू विल इंकर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. इट्स नॉट दैट ओनली वंस यू आर इंकरिंग, यू विल इंकर फॉर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. तो डेप्रिसिएशन भी आपके लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट बनेगा. एंड लेबर, लाइक वॉट एवर यू आर पेइंग टू द लेबर इज ऑल्सो योर ऑपरेटिंग ऑब्वियसली. एंड देन कौन सा चीज आपके लिए इन्वेस्टमेंट बन सकता है, तो वॉट एवर यू आर इंकरिंग फॉर वंस इज योर इन्वेस्टमेंट. R&D कॉस्ट एक ही बार करते ना, बार बार तो R&D नहीं करते. एंड रॉ मटेरियल स्टॉक जब खरीदते हैं ना, तब वो देखो दिस पॉइंट माइट बी कंफ्यूजिंग यू. जब आप खरीद रहा वो रॉ मटेरियल स्टॉक आपका इन्वेस्टमेंट बन गया. व्हेन यू आर यूजिंग इट, when you are purchasing वो इन्वेस्टमेंट बन गया. when you are using here आपके लिए थ्रूपुट बन गया. आई होप दैट इज इनफ, बिकॉज एग्जाम में वो आपको थोड़ा टेंशन कर लेगा. एंड देन बिल्डिंग इक्विपमेंट पूरा एक ही बार कर देना, दैट इज ऑल योर इन्वेस्टमेंट. थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट में इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में चला जाता. ओके, एंड दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडेस क्लास. In the next video, we'll be solving the practical questions like numerical questions from the first chapter. And if you like the video, please share it with your friends. I'll be happy to make more videos of this kind. Thank you for watching. Have a nice day.